The first question is about, do you think caste persists in contemporary India? Right? The question about right? Caste in contemporary Indian society or India, right? Question is this. So question is, do you think that caste persists in contemporary Indian society or not? So what is your answer? Look, when we talk about do you think, so first you need to keep in your mind that whatever already analyzed, explained by the anthropologist, right? We need to go with that things only. So as we have already discussed the present situation of caste in contemporary India, we know that caste system persists in India. But how we can say that caste system persists in India? That we can go with the Indian society, the complex Indian society, right? And if we talk about the caste, it means, what is caste? What is caste? What is caste? Yes, as we have already discussed the characteristic feature of caste, right? In which we have so many definitions given by the MacIver, the Green, the Bills. अच्छा, caste क्या है? Caste is actually a word which is originated by a Portuguese word called as casta, right? Which means lineage, right? Or descent. When we discuss about the family, then we discuss about the first family, descent, lineage, and then caste, right? So we take family, descent, lineage, and caste, right? So this is caste. So caste belongs to a lineage or a descent or a group of family. But on what basis? When we discuss about the origin of caste in ancient India, what were we discussing? That how the guilds became caste? How? So as I'm telling you that a group of a system, a caste which believes in endogamous, right? Which believes in birth status. We are not talking about the stratified system, right? Building related with purity and pollution, right? Purity and pollution. Caste believes, so why system believes? Caste believes, ब्राह्मण कास्ट है इसलिए तो बिलीव कर रहा है कि मैं प्योर हूं. सिस्टम थोड़ी बिलीव कर रहा है, ब्राह्मण बिलीव करता है that I am purest one. So why I need to maintain a distinct distance from the polluted system, right? System arrange किया गया है in the society. But if I talk about caste, I will go with the birth system, right? Caste based on birth, caste based on restrictions, caste based on purity and pollution. So endogamous, purity and pollution and restrictions, that is caste. And most importantly, caste is what is caste? It's a segment. Caste is organic and segmented. We discuss about that when organic and what is organic and what is organic? We are organic. Why? Interdependence, intercooperation. Organic is always based on interdependent system, right? So why we are organic one? Our body is organic. Why? So each and every organ
is coordinated, dependent on other one. If you want to digest, you need respiratory system, right? You need the blood circulation system. If you want blood circulation system, you need energy from digestion system, right? You need brain to regulate things. Brain needs oxygen, so need respiration and circulation, energy from digestion, interdependence. The important thing is interdependence. If we talk about the tribe and caste, to belly. What is tribe? Tribe is based on egalitarian thing, equality, right? Equality, isolated, segmentary. What about the tribe? Caste, organic, but hierarchical, right? So the system, the caste is completely organic in nature. When a system will be there, caste will be interdependence, and that we discuss in the Yajmani system also. Yajmani system is a system of interdependence, right? Economic relations. So when we talk about caste, we talk about a group of families which based on same lineage, right? Distinct, organic, based on polity or purity or pollution. So in this way, caste persists in India. Caste persists in India in terms of we discuss what? Identity as a group of same lineage or descent, endogamous in nature, right? Endogamous in nature, right? Purity, pollution, हम कहेंगे अब नहीं सिस्टम में है, राइट? इट इज नो मोर इन सिस्टम. अभी हम इसकी बात नहीं, बट ब्राह्मण बिलीव देमसेल्फ एज प्योर, बट पॉल्यूशन इज नॉट देयर. ब्राह्मण बिलीव दे आर प्योर, दे आर द्विजा प्योर. अभी भी नहीं मानते हैं क्या? मानते हैं ना, मानते हैं ना. सो इट्स नॉट अबाउट प्योरिटी इन पॉल्यूशन. नाउ इट इज अबाउट द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ प्योरिटी ओनली, बिकॉज पॉल्यूशन का कंसेप्ट अब नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉब्लम आता है वहां पे. So caste is persisting in India, as we discussed for the future of caste also. Caste persists, but not system. System को problem आया है, but caste still is there as an identity, as a protection, as an endogamous thing, right? As in a lineage or descent, people denote themselves as a caste system, and caste system is an identical thing of Hindu society, right? जाति, एंड जाति जुड़ी हुई है सबसे बड़ी किस चीज से? रिजिडिटी. कास्ट इज ए रिजिड फॉर्म, लीनियस, डिसेंट्स, संस्कारा, राइट्स ऑफ पैसेज. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ पैसेज, वी टॉक अबाउट प्योरिटी. क्लियर? तो राइट्स ऑफ पैसेज, प्योरिटी, सेगमेंटेड, ऑर्गेनिक, राइट, along with this the birth rank status and हमने क्या क्या उसके लिए बर्थ रैंक स्टैंडर्ड एंड organic solidarity. Caste is always persist. Caste is persisting, right? So do you think? Yes. So we shall start that what is casta. Casta is a word derived from the Portuguese word casta or jati, which means a lineage or a race or a descent. In this term, caste is a group of families belonging to the same descent or lineage, right? Based on the system of purity, right? Organic, based on living in a system of hierarchy, right? Then based on endogamy and rank birth status. System की बात करेंगे तो hierarchical order की बात करेंगे. Order. सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, ये बात करेगा. ऑक्यूपेशन की, इसमें ऑक्यूपेशन आएगा कास्ट में, बट अब रेस्ट्रिक्टेड हो गया है. तो कास्ट अब किस फॉर्म इंडिया में परसिस्ट कर रही है? नॉट ऑक्यूपेशन, नॉट पॉल्यूशन, नॉट सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज. इन सबको हटाती कास्ट सिस्टम हट गया तुम्हारा. सिस्टम अब कास्ट है. कास्ट किस फॉर्म में है? आइडेंटिटी फॉर्म में है.
कास्ट फीमेल में अभी भी एंडोगेमस फॉर्म में, कास्ट अभी भी प्योरिटी के फॉर्म में है, कास्ट अभी भी लीनिएज और ग्रुप फॉर्म में है, कास्ट अभी भी इंटरडिपेंडेंस फॉर्म में है, बट रेस्ट्रिक्शंस डिले हो गए हैं, राइट? रेस्ट्रिक्शंस डिले हो गए, सिविल डिसेबिलिटीज नहीं है। मैरिज एंडोगेमस है बट हर बार नहीं, फिर भी अभी भी कास्ट सिस्टम मैरिज के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल है ना? अभी भी जाति जो है वो उस विभाग को निर्धारित करती है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल एरियाज हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द कास्ट irrespective to urban or rural society, right? तो कास्ट सिस्टम यस परसिस्ट। इफ यू टॉक अबाउट द रूरल एरिया अभी भी काफी अनरूटेड है, अर्बन एरिया नॉट विद द रेस्ट्रिक्शंस, नॉट विद द रेस्ट्रिक्शन। रूरल एरिया में कई फ्रेगमेंट फॉर्म में तुमको मिलेगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द पॉल्यूशन नाउ, क्योंकि पॉल्यूशन इज नहीं है, बट प्योरिटी को वो मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी खान पान में प्योरिटी रखते हैं, अपने सेक्रेट सिस्टम में प्योरिटी रख रहे हैं। तो अभी भी कास्ट सिस्टम को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, राइट? कास्ट के साथ जो उनकी जुड़ी हुई परंपराएं हैं, उनके ट्रेडिशन है, उनके थॉट है, बिलीफ है, वो आइडियल से वो अभी भी अपने साथ रखे हुए हैं, राइट? इफ ए पर्सन फ्रॉम ब्राह्मण है, उसको उसका खान पान अभी भी कहा जाता है भाई ब्राह्मण जाति का आदमी है तो इसका ये खान पान है, बट नहीं, रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर, यू कैन ईट एनीथिंग। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन कहां से हटा है? ऑक्यूपेशन। सबसे बड़ा किससे निकला है? ऑक्यूपेशन। दूसरा कौन सा गया? डिसेबिलिटीज। तीसरा कौन सा गया? फूड रेस्ट्रिक्शन। ये तीन हट गए हैं, राइट? बट अभी भी सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लीनिएज के फॉर्म में, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में, एक रैंक बर्थ स्टेटस में, एंडोगेमस में, प्योरिटी में कास्ट अभी भी परसिस्ट कर रहा है। यस, कास्ट परसिस्ट इन इंडिया, वी कैन नॉट से। जाति गणना की बात कर रहे हैं ना, कास्ट सेंसस की बात हो रहा है ना। If there is no caste, will be a caste census will be there? No, caste is there. पहला हमारा बात है, राइट? दूसरा डिस्कस किया, critically discuss this feature with suitable examples. So we have already discussed the features of caste system one by one, right? जिसमें इंपॉर्टेंट हमने किसकी बात की थी? गुरिये सर की, राइट? जिन्होंने अलग अलग सिस्टम दिए, जिसमें क्या दिया? सेगमेंटेड, हायरार्की, स्ट्रेटिफाइड, सिविल एंड रिलीजियस, डिसेबिलिटीज, ऑक्यूपेशन रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोगेमस, राइट? उसके अलावा हमने बात की थी ऑर्गेनिक, सेगमेंटेड, उसके बाद में रैंक बर्थ स्टेटस, एंडोगेमस, कैथलिन ग्रुप, स्ट्रक्चरल फॉर्म, राइट? स्ट्रेटिफाइड, देन हेरिडिटरी, वो सारी चीजें क्लियर। एंड कास्ट इज स्टिल अ हेरिडिटरी ग्रुप, जब मैं बात की हमने, ये चीज आएगी विद दिस, क्लियर? आपको इसमें यही लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल caste, how defined the parameters of caste, in those parameters what parameters still present in India in the caste system. So caste are lineage race, right? Then the main thing endogamous, rank birth status, right? Then we shall write about hereditary nature, right? Then occupation, okay? All these 5 to 6 parameters. Then one by one, how in contemporary caste persist in terms of identification, in terms of endogamous group, in terms of birth status, hereditary, purity, but these systems are no more prevalent in contemporary Indian society. Now the features of caste system, उसको हम बड़ा कर देंगे. Now the as a whole, what features are there in the critical discuss the feature of system. तो ये सारे features लिखे और फिर examples. So this is the question. Caste itself is a system, right? मेरी बात ध्यान रखना. Caste itself is a system. Because caste is not an individual word, right? Caste is not an individual word. It is about group of families, right? A lineage, interdependence between caste system, and caste system is actually the basis of Indian social system. Srinivas, गुरिये, श्रीनिवास बोलता के आप कर ही नहीं सकते. सिस्टम कास्ट सिस्टम ही तो है.
मैंने क्या कहा, कास्ट इन टर्म्स ऑफ एंड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, बट कास्ट एज ए सिस्टम तो है ही ना, कास्ट एज सिस्टम तो है ही ना, अपरिहार्य है, सिस्टम है, बट उस सिस्टम के पैरामीटर्स खत्म हो गए हैं, कास्ट रह गई है, सिस्टम्स के पैरामीटर्स लगभग एंड हो रहे हैं, तो कास्ट तो है ही। और जब तुम एक वर्ड की बात करोगे कास्ट, जैसे इफ आई से ट्राइबल, ट्राइबल क्या है, इंडिविजुअल है कि ग्रुप है, राइट? मैं आज पूछूं ट्राइबल आइडेंटिटी, अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी, तो हम ट्राइबल को जिस फॉर्म में सोच रहे हैं वो हमारे माइंड में क्या चलता है, अ फुल ग्रुप। ट्राइबल्स आर लाइक द भील ट्राइबल्स इज क्वाइट डिफरेंट टू द ट्राइबल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, राइट? very much different. Gond very much different to other tribes, but finally they are tribes because they have a lifestyle, a thought, common territory, common religion, common belief, right? They have. But in terms of tribe, तो ट्राइब वर्ड के भी डेफिनेशन मायने अलग अलग होते हैं, वैसे ही कास्ट के मायने अलग अलग है। जब हम बात करते हैं जाति, तो जाति एक व्यवस्था है, डिपेंड करता है कि जाति को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं। यहां पे वर्ड आया है व्हाट इज कास्ट, तो जैसे हम कास्ट वर्ड बोलेंगे ना, तो उसके साथ जितने भी एडजेक्टिव जुड़े हैं वो एडजेक्टिव हमारे माइंड में आएंगे, उन्हीं एडजेक्टिव ने उसको एक सिस्टम बनाया है। उसके बिना वो सिस्टम बनता कैसे? सिस्टम कैसे बना? जब आपने कास्ट को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कास्ट, सगपास्ट सबको मिला के एक बना दिया कि भाई ये है, ये एक सिस्टम बन गया, राइट? बट उस सिस्टम का मेन कौन है? कास्ट। तो जो यहां है वो इन सब में है, बस फर्क क्या करना है कि अभी इन चारों के बारे में नहीं सोचेंगे, एक कास्ट के बारे में। कास्ट है, हाँ है। तो जब हम कास्ट की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली माइंड के पीछे वाले हिस्से में सिस्टम ही चल रहा होता है। बट हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे हम बात करते हैं पॉल्यूशन नहीं है, तो बात तो हमने यही कहा ना कि पॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि शूद्रों के साथ में सिस्टम नहीं है, और बात तो सिस्टम की ही कर रहे हो ना। बात तो कास्ट वर्ड इटसेल्फ हैज अ डेफिनेशन, सिस्टम का डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन कास्ट का है, ट्राइबल का है, ग्रुप का डेफिनेशन नहीं है। बट व्हेन वी पुट दैट इन एन ऑर्डर, इट इज बिकम्स सिस्टम। व्हेन वी पुट कास्ट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, इट बिकम्स ए सिस्टम। बट ऑर्डर के अलावा तो बाकी कास्ट है ही ना, राइट? जब हम एंडोगेमी की बात करते हैं तो उसमें कास्ट है, सिस्टम नहीं है, कास्ट है, राइट? जब हम प्योरिटी की बात करते हैं तो कास्ट है, पर जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो सिस्टम आ जाता है, क्योंकि एक कास्ट को दूसरी कास्ट से डिफरेंट है। जब हम डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो सिस्टम आ जाएगा, बट जब हम एंडोगेमस की बात करेंगे, रैंक बर्थ स्टेटस की बात करेंगे, तो कास्ट ही रहेगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, यही तो मैंने कहा। तो ढीला क्या हुआ है? ढीला हुआ है ये पॉल्यूशन। ढीला कास्ट में ढीला क्या हुआ? ऑक्यूपेशन। ढीला क्या हुआ? टचेबिलिटी एंड टचेबिलिटी। ढीला क्या हुआ? पॉल्यूशन। बस ये डिसेबिलिटी अलग हो गई, तो अब सिस्टम पर आघात हुआ है। कास्ट तो वही है ना, आइडेंटिटी तो वही है। तो इंडियन सिस्टम कास्ट को कह रहा है, कास्ट सिस्टम की बात तो हम करते नहीं, सिस्टम में कास्ट ही जमा जाता है। तो हम सिस्टम की नहीं कास्ट की बात कर रहे थे। तो कास्ट तो है, तुम भी हो, हम भी है, बट ये बात है कि तू और मैं खान पान को नहीं मानते, राइट? अनटचेबिलिटी को नहीं मानेंगे, रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानेंगे, पर कास्ट तो है ना। सिस्टम में नहीं बिलीव करते, भाई तुम शूद्र हो, मैं ब्राह्मण हूं, ये नहीं चलता। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, पैदाइशी हूं, एंडोगेमस हूं, शादी होगी तो पहले घर वाले ब्राह्मण का ब्राह्मण ही देखेंगे, शूद्र का शूद्र देखेंगे, वो अपना अपना सिस्टम है। बट एज ए कास्ट हमें बात करनी है, तो सिस्टम में ऑर्डर शब्द हटा देना, डिसेबिलिटी हटा देना। एक ऑर्डर मतलब चारों के फॉर्म में नहीं, एक सिंगल सिंगल इंटाइटी लेना, कास्ट समझ जाओगे। तो कास्ट के साथ सिंगल इंटाइटी में क्या जुड़ा होता है? अ कॉमन लीनिएज, अ ग्रुप, रैंक बर्थ स्टेटस, हेरिडिटरी इन नेचर, राइट? एंडोगेमस, ऑक्यूपेशन। अब इसमें से क्या परसिस्ट कर रहा है? ऑक्यूपेशन को छोड़ दो, बाकी तो परसिस्ट कर ही रहे हो आप, राइट? एंडोगेमस को ढीला कर दो, राइट? इसको सिंपल कर दो, बात खत्म हो गई। फीचर्स में सारे आएंगे। सेकंड, व्हाट इज जजमानी सिस्टम? एन ऑर्गेनिक सिस्टम। जजमानी सिस्टम क्या है? जजमानी सिस्टम एक्चुअली एन इंटरलेशन बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अब यहां पे सिस्टम का नाम आ गया, क्योंकि हमने क्या बात की? अपर एंड। ये सिस्टम की बात कर रहा है, ये कास्ट की बात नहीं कर रहा है। ये सिस्टम का खेल है, कास्ट का खेल नहीं है।
तो जजमानी सिस्टम एक्चुअली डिनोट्स कास्ट सिस्टम इन इंडिया, राइट? अ रिलेशन बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, राइट? एंड विच टाइप ऑफ रिलेशन? इकोनॉमिक रिलेशन, राइट? And this relation makes a basis of Indian village system, जजमानी system, right? And in this जजमानी system हमने क्या कहा, यजमान और इसमें क्या संबंध बताया हमने, right? एक कमीन था और एक यजमान है, right? एक कमीन है और एक यजमान है। डेफिनेशन कौन कौन सी थी इसमें? हाँ, राम आहूजा ने कहा था। डेफिनेशंस में किसने क्या कहा है? वाइजर ने क्या कहा? राइट, इंटरफैमिलियल एंड इंटर कास्ट, फैमिलियल रिलेशन, कास्ट सिस्टम, राइट? इंटर कास्ट सिस्टम, इंटरफैमिलियल रिलेशन, वाइजर ने बोला। उसके बाद तीसरा कौन बोला? गुरिया क्या बोलता है? सुपर ऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट, सुपर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन बता रहा है। उसके बाद हम कहेंगे अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ जजमानी रिलेशन was illustrated by D.N. मजूमदार, राइट? D.N. मजूमदार 1958 से 62 में जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कहा, और उसमें उन्होंने एक ठाकुर फैमिली, राइट, उसका बताया था कि एक ठाकुर फैमिली में बर्थडे का अवसर है और ये सारा होता है ये। उसके बाद हमने रिलेशंस बताए थे, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन यजमान एंड दिस, व्हाट ड्यूटीज आर देयर, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। फिर हमने बताया था एक जजमान, एक कमीन, जजमान, और रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन देम। उसके बाद हमने कहा था, क्वेश्चन आया था कि एग्जामिन द व्यूज ऑन जजमानी सिस्टम एज एन इगलिटन एज वेल एज एक्सप्लॉइटिव सिस्टम। तो आप दोनों दोगे। एक्सप्लॉइटिव की बात कौन कौन कर रहा है? मजूमदार सर कर रहे हैं, श्रीनिवास सर कर रहे हैं, दुबे सर कर रहे हैं। और इगलिटन की बात कौन कर रहा है? राम आहूजा सर। आपने इनका लिखा गिव रीजंस फॉर दिस डिक्लाइन। क्या रीजंस दोगे डिक्लाइन के? राइट, ऑक्यूपेशन चेंजेस हो रहे हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसके अलावा अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी दे सकते हो, अगर आप देना चाहो ना, अपना जैसे पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, राइट? दूसरा एग्रीकल्चर के अंदर आपने कहा था टेक्नोलॉजी लेड एग्रीकल्चर, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चंस जजमानी सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक हर बार आता है। थर्ड इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? The dominant caste concept was given by M.N. Srinivas, right? M.N. Srinivas ने दिया था। कहां पर काम कर रहे थे? इन इज essay, जिसका क्या नाम था? बताया था आपको, डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा, जिसमें ओकालिंगम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद हमने कहा कि डोमिनेंट कास्ट के कंसेप्ट में क्या क्या है। सो वो जो उन्होंने दिए थे, लैंड हायरार्की, उसके बाद नंबर्स, उसके बाद पॉलिटी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड आ गई ना, लैंड एरिया भी हो गया ना, लैंड ऑक्यूपेशन एरिया तो हुआ, और क्या है, ये हो गया। उसके बाद हमने कहा, एक ग्राफ दिया था मैंने आपको कि रीजनल बताया था ना, लोकल, रीजनल, नेशनल डिक्रीज होता है, राइट? अब एक सिचुएशन आता है, से यू आर अ डोमिनेंट कास्ट इन अ रीजन, राइट? बट योर कास्ट इज सराउंडेड बाय योर कॉम्पिटिटिव कास्ट और द अपोजिट कास्ट or cast against you, right? In this way the dominant caste will diminish, right? Or it will be not so effective, right? क्यों? क्योंकि बाहर का जो एरिया है वो सब इनके काउंटर पार्ट्स या विरोधियों से घिरा हुआ है, तो डोमिनेंट कास्ट बड़ा करके राइज नहीं कर सकते। तो ये भी कई बार इनको दिक्कत करता है, राइट? वो हमने सिस्टम डोमिनेंट कास्ट का। अब एग्जाम्पल डोमिनेंट कास्ट पे केस स्टडीज किस किस की दी आपने? केएल शर्मा सर ने कहां पे किया है? कानपुर में। क्या कहा उन्होंने?
इकोनॉमिक पावर, पॉवर्टी। सेकंड किसका दिया आपने? वाइजर ने कहां काम किया? करीमपुर, राइट। उनमें उन्होंने क्या कहा था? किसकी डोमिनेंसी बताई है? ब्राह्मण्स की। तीसरा कौन कर रहा है? ऑस्कर लेविस। कहां पे कर रहे हैं? रामपुरा यूपी में। किसका बता रहे हैं? ब्राह्मण्स का। चौथे एम एन श्रीनिवास कहां पे कर रहे हैं? ओकालिंगम, कर्नाटका, मैसूर, राइट, रामपुरा विलेज में। तो वहां पे ओकालिंगम का आपका बताया। सेकंड आपने लिखा डोमिनेंट कास्ट जो है इट कैन बी एनी कास्ट। फर्स्ट उन्होंने क्या किया था? एम एन श्रीनिवास फोकस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ द कास्ट, बट आफ्टरवर्ड्स दलित आल्सो डोमिनेटेड। जैसे मैंने आगरा के जाटो समुदाय तुमको बताया था, दैट चेंज्ड। अब दलित क्यों हुए वो भी हमने गया। उसके बाद व्हाई अपर कास्ट आल्सो वांट्स टू अडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ लोअर कास्ट। किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। डोमिनेंट कास्ट का दिया। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट में और आपने क्या दिया है? इस रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी विलेज सोसाइटी, वेरी मच रिलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। विलेज सोसाइटी में क्या कंटेम्प्रेरी है? डोमिनेंट कास्ट वर्क्स एज। तो अब डोमिनेंट कास्ट क्या क्या काम करती है वो यहां आ जाएगा। कल्चरल रोल मॉडल फर्स्ट, सेकंड नॉर्म्स, थर्ड सिक्योरिटी, फोर्थ पॉलिटिकल पावर, राइट। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये। सो वाई इस रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी विलेज सोसाइटी। ये उस गांव के सारे प्रतिबंध, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, वो सब कौन तय कर रहा है? ये काउंसिल्स, जात काउंसिल्स, ये सब कुछ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द importance of karma in Hindu social system. So what did you write about the importance of karma? What is karma? Action or deed, effort. Now how karma is manifested in Indian social system, Hindu social system? How karma is interrelated, is incorporated or manifested in Indian social system? Karma is the basis of rebirth. Karma is the basis of salvation, right? So कर्मा मेन बेसिस है। तो अब इसके आधार पे आपने कहा कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा, राइट। प्रारब्ध है, राइट, अगम है, संचयी है, राइट, ये आपके कर्म है। अब कर्म की क्या डेफिनेशन हुई इसके अंदर? कर्म मार्ग, रिचुअल्स। बाकी गीता ने कर्म के बारे में क्या कहा? वेद ने कर्म के बारे में क्या कहा है? उपनिषद में कर्म के बारे में क्या कहा हुआ है? इंडियन सोसाइटी कर्म के बारे में क्या कहती है? कृष्णा क्या कहता है कर्म योगी का थ्योरी? मैंने बताया था तुमको, निष्काम कर्म योगा। कर्म योगी का कंसेप्ट कौन लेकर आए हैं? गीता लेकर आई है, राइट। रिचुअल्स की बात वेद कर रहा है कर्म कांड का, और कृष्ण कर रहे कर्म योगी का बात कर रहे हैं, राइट। निष्काम कर्म योग, अकर्म हमने बोला था, अकर्म निष्काम करना, और संन्यास कर्म, कर्म संन्यासा, तीन वहां पे थी। तो ये था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म इन हिंदू सोशल सिस्टम। In Hindu social system, the concept of Purusartha, concept of rebirth, concept of salvation, they all are associated with the doctrine of karma, right? The rebirth happens due to the karma, right? Salvation के लिए क्या करना है? क्या करना होता है salvation के लिए? Right. कर्म धर्म के हिसाब से हो जाए तो salvation, और कर्म धर्म के हिसाब से नहीं हो तो rebirth, right? कौन बोला? याज्ञवल्क्य, वेरी गुड। ये तो 10 नंबर का था, तो 4 चीज दे देते तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं, 2-4 तुमको याद आ जाए बहुत है। सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ? बिल्कुल करेंगे आप, आपके पास टाइम है, 150 वर्ड्स है, उसमें से 15% वर्ड्स आप दे सकते हैं, उसका एक्सप्लेन व्हाट इज पुरुषार्थ, क्या है पुरुषार्थ? ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, मोरल्स तो नहीं,
फॉर द सेक ऑफ स्पिरिट, पुरुषार्थ का मैंने बताया था, फॉर द सेक ऑफ स्पिरिट, आत्मा के लिए किया गया, राइट, क्योंकि फाइनल गोल क्या है इसका, मोक्षा। तो मोक्ष आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। तो धर्म सेंटर में है, अर्थ एंड काम एंड फाइनल गोल इज मोक्षा, राइट। तो उसमें फिर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ क्या है कि धर्म सिग्निफिकेंस पुरुषार्थ एक्चुअली इट डायरेक्ट्स लाइफ टुवर्ड्स द मोक्षा, राइट। हाउ टू लिव ए लाइफ, कंडक्ट ऑफ लाइफ, हाउ टू वर्क इन लाइफ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड बेस ऑफ द हिंदू सोशल सिस्टम, वो आपने लिखा। उसके बाद हमारा फाइनल आया था, थर्ड है वर्णाश्रम। तो क्या लिखा वर्णाश्रम में आपको, यस, राइट। व्हाट इज वर्णाश्रम, अ कंसेप्ट किसके लिए, वर्ण और सोशल का। वर्ण क्या है, वर्ण क्या, अ सोशल डिवीजन, और आश्रम क्या है, various stages of life, various stages of life. So individual stages of life for different varna, individual stages of life in varna, and due to in varna we have ashrama there, and for different varna we have different ashramas. Then the significance of varnashram system, right, in the study of Hindu society. कोई बात, यूपीएससी देख लेगी क्या।